Welcome and good evening, all of you. Thank you all for joining on this insightful webinar called Maximize Busy Agent, Keep Your Business Data Safe and Stay Stress Free. So, in this webinar, we will be exploring the entire features of Busy Agent and we'll understand how Busy Agent will help to manage our data, to safeguard our business data and make our business smarter or to run our business in a smarter way. So stay tuned with us till end so that we can explore the entire features related to Busy Agent. Manual interventions that can be reduced. So Busy Agent will work as a smart tool or a utility that will work behind to take care about all these needed features. So let's see how we get through these Busy Agent features or how we can explore all these features. We'll go on practically also with this feature. So stay tuned with us till end. So first we'll understand what is Busy Agent. तो Busy Agent क्या है सबसे पहले वो समझते हैं. So Busy Agent एक स्मार्ट टूल या एक यूटिलिटी है जो बैकएंड पे ऑटोमेटिक एक्टिविटीज को परस्यू करते हैं जो कि रिलेटेड टू बिजी है. तो क्या वो ऑटोमेटिक फीचर्स जिसको बिजी एजेंट यूटिलिटी रन करता है बैकएंड पे या रन करने में हेल्प करता है बैकएंड पे, दैट इज मैनेजिंग बैकअप, local drive and Google Drive. So as we all know that data backup is most important and we make it as a priority basis. So it will reduce the manual intervention. या आप जो भी बैकअप ले रहे हैं लोकल ड्राइव पे या गूगल ड्राइव पे, दैट विल बी टेकन केयर बाय बिजी एजेंट फ्रॉम द बैक एंड. So busy agent will work according to the schedule that you set and the data backup will be taken through busy agent in local drive as well as in Google Drive also. Second, Busy Agent also will work as an utility to run the dongle server, that is for security checking purpose, license security checking purpose of Busy. So you no need to open the dongle server. If you enable it through Busy Agent, then your license security will be get checked through Busy Agent from the backend. Okay, so you no need to open Busy for checking the security in your server system. Incremental synchronizations of mobile app. That means as we all know that कि हमारे बिजी में जो है मोबाइल ऐप की इंटीग्रेशंस की हुई है, डेटा जो है सर्वर से मोबाइल ऐप पे सिंक करता है. सो बिजी एजेंट फंक्शन के थ्रू या यूटिलिटी के थ्रू ये इंक्रीमेंटल सिंक्रोनाइजेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा. दैट मीन्स अगर आप जो भी टाइमिंग सेट करके रखेंगे, बिजी एजेंट का काम होगा वो आपका डेटा जो है सर्वर से मोबाइल ऐप पे सिंक करके देगा या मोबाइल ऐप के डेटा सर्वर पे सिंक करके लेके आ जाएगा. सो बोथ अपलोड एंड डाउनलोड, that is called the incremental synchronization, will takes place or that will be taken care through busy agent. Okay, and also another feature that has been added, that is called payment reminder, auto payment reminder. That means if a customer having outstanding amount at your company, so कोई भी कस्टमर जिसकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, तो नॉर्मली क्या होते हैं कि हम कस्टमर्स को जो है मैनुअल कॉल करके बताते हैं या उनको मैनुअली मेल करते हैं कि आपका ये ड्यू है, इस बिल के अगेंस्ट पे ड्यू है. रिमाइंडर जो है हमें मैनुअल भेजना पड़ता है, बट बिजी एजेंट के थ्रू आप ये चीज़ें को ऑटोमेट कर सकते हैं. सो बिजी एजेंट विल हेल्प टू ऑटोमेट द पेमेंट रिमाइंडर प्रोसेस. रिमाइंडर विल गेट flow to the customers having the outstanding amount at your companies. So this facilities can be, or this feature can be used through Busy Agent. So Busy Agent completely take care on all these features related to Busy. Now Busy Agent you can install from Busy website, that is www.busy.in, and from there you can get the Busy Agent setup file. You can download the setup file and you can run the setup file. So Busy Agent अगर आप स्टार्टअप में रख लेते हैं, मतलब कि आप कंपनी या अगर आप कंप्यूटर ओपन करते हैं तो बिजी एजेंट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा और बैकएंड में वो फंक्शन रन करता रहेगा. तो आपकी जो डे टू डे ऑपरेशंस है उस पर कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि बिजी एजेंट बैकएंड में अपना काम करता रहेगा जो भी आप टाइम शेड्यूल सेट करके रखेंगे उस हिसाब से. सो विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग practically also. Now coming on the topic that what problems that busy agent solve. क्या वो प्रॉब्लम्स है जो बिजी एजेंट सॉल्व कर सकता है, ठीक है, हमारे डेली ऑपरेशंस पे या बिजनेस पे. तो सबसे पहले तो मैनुअल बैकअप प्रोसेस एक टीडियस काम होता है जो बिजी एजेंट कंप्लीटली टेक केयर कर लेगा.
हमें बार बार बैकअप लेने की जरूरत नहीं है, हमें बैकअप पाथ सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये एंटायर प्रोसेस विल बी टेकन बाय कैन बी डन थ्रू द हेल्प ऑफ बिजी एजेंट। ओके। सेकेंडली, रिस्क ऑफ डेटा लॉस ड्यू टू सिस्टम फेलियर। अब कभी कंप्यूटर में दिक्कत आ रही है, सो इफ एनी काइंड ऑफ ट्रबल शूटिंग अपीयर्स इन योर कंप्यूटर, देन और if the computer gets crash, then your data may get lost. So how busy agent will help you? So busy agent will give you an opportunity to take the data or give you an option to take the data backup in your Google Drive through your Gmail ID. ओके, सो आपका डेटा लॉस होने में कोई चांसेस नहीं है। अगर सिस्टम क्रैश हुआ या कोई भी दिक्कत आई, सो आप गूगल ड्राइव से अपना डेटा को रिकवर कर सकते हैं। ठीक है। थर्डली, मैनुअल सिंक्रोनाइजेशन इन बिजी मोबाइल ऐप। जो बिजी का मोबाइल ऐप है उसमें क्या होता है, आपको डेटा देखना होता है तो आपको सर्वर से बार बार वो अपलोड करना पड़ता है या सिंक वाला ऑप्शन को क्लिक करना पड़ता है ताकि आपका डेटा सिंक करे आपके मोबाइल ऐप पे। देन यू कैन गेट टू नो सी ऑल द रिपोर्ट्स related to your server data. But this process will also be taken care by busy agent. तो busy agent backend पे आपका जो है इंक्रीमेंटल डेटा अपलोड और सिंक्रोनाइजेशन का जो है फीचर काम करेगा बिजी एजेंट के थ्रू, जिससे क्या है कि आपका डेटा इंस्टेंटली आपके मोबाइल ऐप पे सिंक कर जाएगा, जो भी आप टाइमिंग सेट करके रखेंगे उसके हिसाब से। सो यू नो नीड टू वरी और यू नो नीड टू डू इट मैनुअली टू गेट टू सी दी एंटायर रिपोर्ट ऑन योर मोबाइल ऐप. So that function will be taken care through busy agent from the backend. Manual intervention is needed to run dongle server utility for license security check. As you all know that busy का एक लाइसेंस होता है जिसमें जैसा जब आप busy चलाते हैं तो आपको लाइसेंस दिखता है। अगर आप मल्टी यूजर यूज कर रहे हैं देन यू नीड टू एनेबल busy in the server, or if you are using busy enterprise or standard client server model, which database is belong to Microsoft SQL. So in that case, you need to enable dongle server. But in this scenario, busy agent will take care about this. मतलब busy agent backend पे अगर आप busy agent पे dongle server ऑन करके रख लेते हैं तो जैसे ही आप कंप्यूटर ओपन करेंगे busy agent ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा और आपका dongle server भी ओपन हो जाएगा। तो आपको busy ओपन रखने की कोई जरूरत नहीं है सर्वर पे, आपका dongle server ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तो क्लाइंट सिस्टम से उनको सिक्योरिटी फाइल दिख जाएगा या उनको लाइसेंस एक्सेस मिल जाएगा, तो क्लाइंट सिस्टम से वो इजीली वर्क कर सकता है। ठीक है, बिना बिजी को ओपन किए भी सर्वर पे। नेक्स्ट इज द मैनुअल पेमेंट रिमाइंडर लीडिंग टू लेट पेमेंट. सो दिस इज ऑल्सो एन हेक्टिक वर्क, और यू कैन से it will also create an issue to get a late payment process. That means कि अगर आप प्रॉपर टाइम पे आपके कस्टमर्स को रिमाइंडर नहीं भेज पाएंगे कि आपके इतने ड्यू है, इस बिल के अगेंस्ट में इतने ड्यू है, देन कस्टमर विल ऑल्सो फॉरगॉट दिस एंड योर पेमेंट विल कम इन अ लेट प्रोसेस. सो आपका कैश फ्लो में आपका जो इश्यूज हो सकते हैं, तो आपको टाइमली पेमेंट नहीं मिल सकता है. So in that case, busy agent will help you to remind those customers who are having outstanding amount at your company. So automatically उस सारे customers को reminder चला जाएगा busy agent के through. So this problems is also be taken care or resolved by busy agent. So this is also a problem that appears in our business operations to remind those customers who are having outstanding amount in our company. Okay. Now let's have an hands-on with busy agent. So let's see practically कैसे busy agent work करता है. Okay. So एक बार मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ. So once you open the computer, आपको busy agent automatically open हो जाएगा. इसमें ये provisions भी है कि you can put it on the startup mode also. कि अगर आप इसको startup में रख लेंगे और if you need to manage it in startup, then once you get a computer open, busy agent will get open automatically. Okay, so यहाँ पर आपको कई सारे options दिख रहे हैं. So let's understand one by one each and every options. First, that is the general configuration. First जो आपको करना है, that is the general configuration where you have to select the database type. We all know that in busy we are having two kind of database. One is Microsoft Access and another one is SQL. सो आप बिजी में भी जैसे देखेंगे तो आपको यहाँ पर दो तरह के डेटाबेस दिख रहे हैं, एक्सेस और एसक्यूएल. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप जो है अपना जनरल कॉन्फ़िगरेशन सेट करेंगे बिजी एजेंट पे. तो अगर आपका एक्सेस डेटाबेस है जो कि बाय डिफॉल्ट ही रहता है,
इसमें जो भी पाथ में आपका कंपनी है, मतलब जहां से आपका बिजी रन कर रहा है, जो मतलब जहां से आपका बिजी कंपनी का डेटाबेस रन करता है, या डेटाबेस आप जो है डेटा फोल्डर अपने रखा है, जैसे अब जब आप कंपनी ओपन करते हैं तो आपको कंपनी की लिस्ट दिखता है। तो ये कंपनी का लिस्ट कैसे दिखता है? आपने डेटा डायरेक्टिव पाथ जो टैग करके रखा है, जहां पर एक्चुअल डेटा है आपके, वो डेटा डायरेक्टिव पाथ भी आपको बिजी एजेंट पे जनरल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर टैग करना है या सिलेक्ट करना है। तो आपको पहले डेटा डायरेक्टिव पाथ सिलेक्ट करना है, जहां पर आपकी सारी कंपनीज हैं, जिस कंपनीज के डेटा के ऊपर आप जो है बैकअप लेना चाह रहे हैं या अदर प्रोसेस मेंटेन करना चाह रहे हैं बिजी एजेंट के थ्रू, तो वो कंपनी डेटा डायरेक्टिव पाथ आपको सिलेक्ट करना है यहाँ से। ठीक है, आप ब्राउज करके भी डेटा डायरेक्टिव पाथ सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एडिशनल डेटा पाथ होता है। अब कोई कहता है कि मेरे एक्सटर्नल ड्राइव पे भी डेटा है, मैं कभी कभी एक्सटर्नल ड्राइव से भी काम करता हूँ, तो मेरे पेन ड्राइव पे भी डेटा है, तो मैं मेरे सिस्टम के डेटा पाथ के साथ अगर कोई एडिशनल डेटा पाथ भी टैग करना चाहूँ, जहाँ जिसका डेटा बैकअप भी मैं लेना चाह रहा हूँ, मेरे पेन ड्राइव में भी मेरे पुराने 2-3 कंपनीज के डेटा है, सो वी आर हैविंग 2-3 मोर कंपनीज वेयर डेटा इज इन द पेन ड्राइव और इन द एक्सटर्नल ड्राइव। So those companies are my old companies or old financial year companies. Okay. So in that case, you can select the additional data path also, for which you need to start the backup process. Okay. So आपके जो सिस्टम के डेटा पाथ है, means your drive data path as well as your external drive data path or additional data path. It may be your external drive, external hard disk. It may be your pen drive. It may be your other local drive also. Okay. So आप अलग अदर ड्राइव भी सिलेक्ट कर सकते हैं डेटा पाथ, जिसका डेटा जहां पर आपको डेटा बैकअप या जहां पर आपकी कंपनीज है और जिस कंपनी की डेटा बैकअप आप लेना चाह रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर भी एक प्रोविजन मिल रहा है, दैट इज सेंड नोटिफिकेशन थ्रू ईमेल। सो दैट मीन्स कि आप चाहते हैं कि जैसे ही मेरा बैकअप प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, सो बिजी एजेंट शुड गिव मी अ नोटिफिकेशन इन माय मेल आईडी दैट माय बैकअप हैज बीन कंप्लीटेड, प्रोसेस हैज बीन कंप्लीटेड। सो आपको अगर नोटिफिकेशन चाहिए आपके मेल पे, सो यू हैव टू मेंशन योर जीमेल आईडी। ओके, if you are having a Gmail ID, then you have to put the Gmail ID of SMTP server. So you can mention your Gmail ID, whatever IDs you need to mention. You mention the SMTP server of that email ID. जैसे कि अभी Gmail का मैंने सेट करके रखा है, तो smtp.gmail.com Gmail ID का SMTP सर्वर है, पोर्ट बाय डिफॉल्ट ही आ जाते हैं। यहाँ पर यूजर नेम में मैं अपना Gmail का आईडी मेंशन करके रखा हूँ, और पासवर्ड जो होगा वो है ऐप पासवर्ड। सो जीमेल का ऐप पासवर्ड आपको सिक्योरिटी के अंदर आपका टू वे वेरिफिकेशन होते हैं, उसके अंदर आपको ऐप पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। सो यू कैन गेट द ऐप पासवर्ड फ्रॉम जीमेल आईडी आल्सो। सो वंस यू गेट द ऐप पासवर्ड, जो आपको ऐप पासवर्ड आप वहां पर जनरेट कर रहे हैं, वही ऐप पासवर्ड आपको यहाँ पर मेंशन करना है या यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देना है। ठीक है, जीमेल आईडी से जो आप ऐप पासवर्ड जनरेट कर रहे हैं। इसके बाद आप अगर नोटिफिकेशन बिजी बीएनएस ऐप, बिजनेस नोटिफिकेशन सर्विस ऐप जो होती है बिजी का, अगर उस पे भी आप चाहते हैं तो वो भी आप एनेबल कर सकते हैं। इसमें आप जो मोबाइल नंबर पे आपने वो ऐप को इंस्टॉल करके रखा है, मोबाइल नंबर पे रजिस्टर करके रखा है उस ऐप को, आप वो मोबाइल नंबर यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लोकेशन आपका सिस्टम का नाम दे देगा। जैसे अभी मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, तो मेरा लैपटॉप का नाम यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली जनरल कॉन्फ़िगरेशन, जो कि फर्स्ट स्टेप्स है बिजी एजेंट को यूज करने के लिए। तो हमें पहले जनरल कॉन्फ़िगरेशन पे जाके हमें डेटा पाथ सिलेक्ट करनी है, जहां पर हमारी सारी कंपनीज के डेटा है। सो वी हैव टू सिलेक्ट द डेटा पाथ वेयर ऑल द कंपनीज डेटा इज अवेलेबल। ओके, देन वी हैव टू मेंशन द ईमेल आईडी इफ वी नीड टू गेट अ नोटिफिकेशन इन आवर ईमेल आईडी, तब हमें इसको एनेबल करना, उसके बेसिस पे हमें ईमेल आईडी यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, जिसपे मुझे नोटिफिकेशन चाहिए। वंस इट गेट डन, आप इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन सेव हो जाएगा। देन कमिंग ऑन द नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज बैकअप कॉन्फ़िगरेशन लोकल। नाउ एज आई सेड दैट यू कैन टेक बैकअप बोथ इन लोकल एंड गूगल ड्राइव, तो आप दोनों ड्राइव पे ही बैकअप ले सकते हैं। तो अगर लोकल ड्राइव में लेना है तो लोकल ड्राइव में क्लिक करें और यहाँ पर आप इसको एनेबल कर दें। एनेबल करने के बाद यहाँ पर आप पाथ सिलेक्ट कर ले, बैकअप पाथ, मतलब जहां पर आप बैकअप लेना चाह रहे हैं। अगर आप लगता है कि अगर आप अपना एक फोल्डर बना रहे हैं, बैकअप फोल्डर, ठीक है, जो कि आपके डी ड्राइव में है, तो आप डी ड्राइव में जाके वो फोल्डर को सिलेक्ट कर सकते हैं जहां पर आप बैकअप लेना चाह रहे हैं। ठीक है, उस फोल्डर पे आपका बैकअप चला जाएगा लोकल ड्राइव पे। ठीक है, तो लोकल ड्राइव पे जो बैकअप जाएगा वो भी आप ऑटोमेटिक शेड्यूलिंग कर सकते हैं। कैसे?
उसमें भी मैं बता दूं कि आप बैकअप का फोल्डर कैसे क्रिएट करना चाह रहे हैं। जैसे आपने एक मेन फोल्डर बना लिया बैकअप, उसके अंदर भी आप चाहते हैं कि एक डेट कंपनी वाइज फोल्डर बन जाए। डेट कंपनी वाइज मतलब आज सपोज 20 तारीख है, 20 जून 2025, ठीक है। और आपका कंपनी का जो कोड है, सपोज यू आर गोइंग टू टेक बैकअप ऑफ दिस कंपनी, ओके, इट्स कम 0006, ओके, और दिस कंपनी वांट टू टेक द बैकअप ऑफ दिस कंपनी। तो अगर आप चाहते हो कि ये कंपनी डेट कंपनी कोड वाइज एक फोल्डर बन जाए लोकल ड्राइव पे, सो यू कैन सिलेक्ट दिस ऑप्शन डेट कंपनी वाइज। इफ यू क्लिक कंपनी डेट वाइज, देन पहले क्या होगा, कंपनी का कोड आएगा, कॉम 0007 का एक फोल्डर बनेगा, उसके अंदर डेट वाइज फोल्डर बनेंगे, उसके अंदर बैकअप के फोल्डर्स क्रिएट होंगे या बैकअप्स के फाइल क्रिएट होंगे, ठीक है। अब आते हैं सिलेक्टेड कंपनीज पे। सो यहाँ पर दो ऑप्शंस मिलेंगे, एक तो ऑल कंपनीज, एक सिलेक्टेड कंपनीज पे। तो अगर हम सिलेक्टेड कंपनीज में क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन दे देगा, कंपनी की लिस्ट आ जाएगा। यहाँ पर आप कह रहे हो कि मुझे सारे कंपनीज के बैकअप को ऑटोमेटेड नहीं करना है, आई नीड टू टेक बैकअप ऑफ दिस पर्टिकुलरली दिस कंपनी, सो आई कैन डबल क्लिक ओवर हियर। हम इस रो में, इस कंपनी के पैरेलल रो पे हम डबल क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से हमारा बैकअप का शेड्यूलिंग ऑन हो जाएगा। यहाँ पर मैं सिलेक्ट ऑल करूंगा तो सारे संडे भी बैकअप ले लेगा, मंडे भी ले लेगा, ट्यूसडे। अगर मैं चाहता हूँ संडे ना ले बैकअप, बिकॉज संडे इज नॉट माई वर्किंग डे, आई डोंट नीड टू टेक बैकअप इन संडे, आई नीड टू टेक बैकअप फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, तो हम इसको सिलेक्टिव भी कर सकते हैं, और सिलेक्ट ऑल करेंगे तो एक साथ सारे जो है डेज सिलेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर हम मैक्सिमम एक दिन में 3 टाइम पे बैकअप ले सकते हैं, ठीक है। So we can take 3 times backup. If I mention 3 over here, you can mention the specific time. कि एक 12 बजे ले ले, एक 3 बजे ले ले, एक 6 बजे बैकअप ले ले। And the retained backup for days should be max or will be maximum up to 99 days. मतलब 99 डेज तक बैकअप रिटेन हो सकता है, उसके बाद आपका फिर बैकअप जो है हट जाएगा, आपका री बैकअप स्टार्ट हो जाएगा उसी पे। तो रिटेन बैकअप फॉर डेज यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 7 रहता है, तो आप मैक्सिमम 99 डेज तक रख सकते हैं रिटेन बैकअप को, ठीक है। तो बैकअप उसी जैसे ही आपके डेट वाइज अगर आपने बना के रखा है फोल्डर, तो डेट वाइज बैकअप लेता रहेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये आप इसको सेट कर सकते हैं। इसमें शेड्यूलिंग के हिसाब से अगर आप देखें तो जैसे मैंने बताया टाइम शेड्यूलिंग, तो टाइम शेड्यूल के हिसाब से आप मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। और सेम चीज आप जो है बेसिकली गूगल ड्राइव के क्षेत्र में भी कर सकते हैं, बट गूगल ड्राइव में फर्स्ट यू हैव टू मेंशन योर ईमेल आईडी, ठीक है। तो आप जो भी आपके जीमेल आईडी है वो आप मेंशन करेंगे, और जीमेल आईडी मेंशन करने के बाद आप जो है एक बार ऑथराइज बटन में क्लिक कर लेंगे। अगर आपने वन टाइम ऑथराइज कर लिया, मतलब कि आपने जीमेल आईडी, आपकी जीमेल आईडी के थ्रू परमिशन दे दिया कि बैकअप लिया जा सकता है, बिजी एजेंट वाले जो यूटिलिटी है वो बैकअप ले सकते हैं, तो ऑथराइज बटन में एक बार क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर करें कि आपका जीमेल आईडी ओपन रहे, ठीक है, लॉगिन रहे ड्यूरिंग द ऑथराइजेशन प्रोसेस, एंड देन you can create backup folder like I share, like I say in whenever you're going to take backup in local drive as well. तो जैसे आप लोकल ड्राइव में बैकअप ले रहे हैं, वैसे गूगल ड्राइव में भी बैकअप हो जाएगा। उसमें भी आपका फोल्डर कैसे क्रिएट होगा, डेट कंपनी वाइज, दैट मीन्स आज 20 तारीख है तो 28 जून 2025 का फोल्डर बनेगा, उसके अंदर एक कॉम 000 का फोल्डर बनेगा, क्योंकि मैं सपोज इस कंपनी का बैकअप लेना चाह रहा हूँ। तो दिस कंपनी इज बैकअप, दिस कंपनीज कोड इज कॉम 0007। So if I need to take backup in Friday, for example, okay, so I need to take backup on 27 p.m. Okay, so I can save this. तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक सेव हो गया। जैसे हम सेव कर लेंगे, so you can see automatically your backup process will get run, ठीक है। तो आपका बैकअप प्रोसेस जब भी 5:27 मतलब 5:27 हो जाएगा, आपका बैकअप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, रन हो जाएगा। तो आप अपना ऑपरेशंस बैकएंड पे जो भी आपको काम करना है वो काम कर सकते हैं। ये बिजी एजेंट ऑटोमेटिकली अपना बैकअप प्रोसेस कंटिन्यू करना चालू कर देगा। सो लेट फर्स्ट मेक इट क्विक फॉर ऑल ऑफ यू। लेट्स क्लिक ऑन बैकअप नाउ बटन। Let's see how the folders get created in Google Drive. Okay, so it's asking right now to want to take backup in Google Drive. So this process you no need to click anywhere, it will get start automatically. अभी just दिखाने के लिए मैंने बैकअप नाउ में क्लिक किया, Google Drive में मैं क्लिक करता हूँ तो बैकअप ऑफ Google Drive सर्विस हैज स्टार्टेड। यहाँ पर आपको अवेलेबल स्पेस भी दिखा देगा, ठीक है। आपके जो कंपनी जिसका बिजी कंपनी का जो कोड है वो भी मेंशन कर देगा, और बैकअप इन प्रोसेस दिखा रहा है।
तो अभी आपके जीमेल में जो स्पेस अवेलेबल है वो भी बता दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सक्सेसफुली बैकअप हो गया। ठीक है, अभी ईमेल इन प्रोसेस, मतलब बैकअप होते ही आपको ईमेल भी चला जाएगा। तो मैं ईमेल एक बार चेक करता हूँ मेरे पास नोटिफिकेशन आया कि नहीं आया। सो लेट मी चेक इन दी ईमेल in my Gmail whether I got a notification. Yes, I got a notification in 5:27 p.m. that my backup has been completed. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक नोटिफिकेशन मिल चुका है, ये my backup has been completed for this कंपनी। ओके, सो अगर मुझे ड्राइव पे देखना है कैसे गया है, तो मुझे यहाँ पर जो है मैं यहाँ से भी चेक कर सकता हूँ। यहाँ पर भी ऑप्शन दिया हुआ है। अगर हम बिजी एजेंट के थ्रू भी देखें, व्यू बैकअप ऑन गूगल ड्राइव, यहाँ पर भी हम क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से भी हमारा गूगल ड्राइव ओपन हो जाएगा। और एल्स यू कैन ओपन फ्रॉम योर जीमेल आईडी ऑल्सो योर गूगल ड्राइव। तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर आपको ये बैकअप का फोल्डर बना है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ। माई ड्राइव बोल के एक्चुअली होता है। माई ड्राइव के अंदर ये मेरा जो सिस्टम का नाम है, वो सिस्टम नाम से मेरा एक फोल्डर बना है। ठीक है, ये सिस्टम नाम से फोल्डर बन गया ऑटोमेटिकली। इसके अंदर जो है मुझे डेट वाइज बैकअप मिल जाएगा। तो ये मेरा सिस्टम का फोल्डर बन गया, बिजी बैकअप सिस्टम। जो मेरा लैपटॉप का कंप्यूटर का नाम है, वो नाम से एक फोल्डर ऑटोमेटिक बन गया। उसके अंदर डेट वाइज बना है। अब जैसे देखिए, you all can see that the last backup that has been taken from busy agent, that is on 5:27 p.m. 20th June 2025. If I double click over here, then I will get the data folder. So here you can see the data folder com 0007. So इसके अंदर जाएंगे तो इसके अंदर मुझे डेटा फाइल मिल जाएंगे। So this is how the backup process works in Google Drive, and how Busy Agent will help you to make it automated for you. You no need to do it manually. आपका टाइमिंग आप सेट कर रखेंगे और ऑटोमेटिकली आपका बैकअप गूगल ड्राइव में चला जाएगा। एंड नोटिफिकेशन मेल विल आल्सो सेंड ऑन योर मेल आईडी वेदर द बैकअप हैज बीन कंप्लीटेड और नॉट। ठीक है, तो आपका बैकअप प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर बता भी देगा कि सक्सेस हो रहा है, फेलियर हो रहा है। इसकी लॉग लिस्ट भी आपको मिल जाएगी कि कब कब आपने बैकअप लिया था, वो सक्सेस हुआ था या फेलियर हुआ था। जो भी आप टाइम शेड्यूल सेट करके रखेंगे यहाँ से। ठीक है, जो भी आपने अपना टाइम शेड्यूल सेट करके रखा है यहाँ से, और जो भी आपने डेज बेसिस पे आपने सेट करके रखा है, उसी बेसिस पे आपका बैकअप शेड्यूलिंग स्टार्ट कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग ऑन द डोंगल सर्वर फीचर। So dongle server features is just an option to enable your busy license security or to check the license security of busy। तो आप इसमें आप नॉर्मली क्या होता है, अगर आप बिजी की जो क्लाइंट सर्वर एडिक्शन है वो यूज कर रहे हैं, जिसका बैकएंड आपने एसक्यूएल डेटाबेस रखा है, तो उस केस में क्या होता है कि आपको बिजी सर्वर में बिजी ओपन करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको डोंगल सर्वर भी ओपन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अलग से डोंगल सर्वर का एप्लीकेशन आता है, वो आपको ओपन नहीं करना पड़ेगा। वो बिजी एजेंट के अंदर ही दिया गया है ऑटोमेटिकली। तो बिजी एजेंट जैसे ओपन करेंगे और डोंगल सर्वर को एनेबल रखेंगे बिजी एजेंट पे, तो जैसे आप सर्वर में आप बिजी एजेंट ओपन हो जाएगा, आपका सर्वर पे डोंगल सर्वर भी ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तो पहले ये अलग से आता था, अब डोंगल सर्वर अलग से आपको नहीं जरूरत नहीं पड़ेगा। बिजी एजेंट पे आपका डोंगल सर्वर ऑन रहेगा, तो ये ओपन हो जाएगा बिजी एजेंट के साथ, ताकि क्लाइंट सिस्टम एक्सेस कर पाए बिजी को, या क्लाइंट सिस्टम को लाइसेंस एक्सेस मिल पाए, एंड दे कैन वर्क फ्रॉम द क्लाइंट सिस्टम also if they are using count license. Okay, so dongle server basically work as a checking the busy's license security, and also if you need to go through all the license details, you can get it from here. तो dongle server enable करती है आपको यहाँ पर लाइसेंस डिटेल्स भी व्यू हो जाएंगे। चेक सिक्योरिटी में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सिक्योरिटी डिटेल्स सारे बता देंगे, क्या आप मॉडल यूज कर रहे हैं। ठीक है, लाइसेंसिंग डिटेल्स वगैरह, बीएलएस कब एक्टिव है कि नहीं है, वो सारी डिटेल्स आपको लाइसेंस डिटेल यहाँ पर भी बता देगा। ठीक है, सो यू कैन एनेबल दिस एंड यू कैन सेव दिस। सो आपका ये एज ए लाइसेंस सिक्योरिटी पर्पस पे आप इसको यूज कर सकते हैं, ताकि आपको सर्वर पे बिजी ओपन ना रखना पड़े, या बिजी एजेंट ओपन होते ही आप क्लाइंट सिस्टम से एक्सेस कर पाए। हाँ, उस केस में आपके सर्वर पे काउंट लाइसेंस होनी चाहिए अगर आप डोंगल सर्वर यूज कर रहे हैं तो। और एक नेक्स्ट फीचर पे आते हैं, दैट इज मोबाइल ऐप सिंक्रोनाइजेशन। So mobile app synchronizations, as I say, that if you want to do the upload and download process automatically, or you want to set a timing for incremental upload and download from and through mobile app, then you can enable this feature.
आपने टाइम डाल दिया 1 मिनट, 1 मिनट बाद मेरा सर्वर से डेटा मोबाइल ऐप में अपलोड हो जाएगा, मोबाइल ऐप में जो भी मैंने एंट्री किया वो मेरे सर्वर पे सिंक कर जाएगा। तो पहले क्या होता था नॉर्मली, अगर आप कोई भी कंपनी में आपने मोबाइल ऐप ऑन करके रखा है, सपोज फॉर एग्जांपल आई एम लॉगिंग टू दिस कंपनी, यहाँ पर आप जैसे ही मोबाइल ऐप में जाते हैं, कॉन्फ़िगर में जाते हैं, तो हियर यू कैन सी सिंक्रोनाइज डेटा का बटन दिया हुआ अलग से, तो ये आपको बार बार क्लिक नहीं करना पड़ेगा। If you have enable in Busy Agent, if you have enable the mobile app synchronization or incremental upload, then you no need to do it manually from desktop. Okay. So आपने इसको enable कर दिया, इसको सेव कर दिया, तो ऑटोमेटिक आपका मोबाइल ऐप का डेटा जो है आपके सर्वर पे आ जाएगा और सर्वर का डेटा मोबाइल ऐप पे सिंक कर जाएगा। तो बोथ अपलोड एंड डाउनलोड प्रोसेस विल गेट वर्क ऑटोमेटिकली थ्रू दिस मोबाइल ऐप सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस that will work under busy agent। ठीक है, तो busy agent इसको भी जो है टेक केयर करता है। इसके अलावा जो है बेसिकली आपको एक पेमेंट रिमाइंडर का भी ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, सो पेमेंट रिमाइंडर एंड दिस इज ऑल्सो इन ऑटोमेटेड मोड। इफ यू एनेबल दिस, नाउ यू विल गेट ऑल द कंपनी लिस्ट फॉर विच कंपनी यू नीड टू एनेबल दिस ऑटो पेमेंट रिमाइंडर फीचर। तो अगर अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस कंपनी के लिए पेमेंट रिमाइंडर ऑन करूँ ऑटो, तो इस कंपनी को सिलेक्ट करते ही यहाँ पर ऑप्शंस पूछ लेगा, क्योंकि नॉर्मली हम लोग रिमाइंडर किसको भेजते हैं, कस्टमर्स को भेजते हैं। तो कस्टमर्स आर आवर संडी डेटर ग्रुप्स कम्स अंडर संडी डेटर। तो हम यहाँ पर ग्रुप ऑफ अकाउंट्स पे भी पेमेंट रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। अगर संडी डेटर्स के अंदर जितने भी कस्टमर रहेंगे या जो भी ग्रुप्स के अंदर हमने कस्टमर बना के रखा है, सारे कस्टमर्स, जितने कस्टमर्स होंगे, जिस कस्टमर का बैलेंस 0 है उसको नहीं जाएगा, जिसका आउटस्टैंडिंग 1 रुपए भी रहेगा उसको भी आप जो है आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर भेज सकते हैं। ठीक है, तो संडे डेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं एंड देन यू कैन सेट अ शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग आप डेली बेसिस पे चाहते हैं कि हर दिन जो है इवनिंग को 6 बजे चला जाए। ठीक है, तो आप यहाँ पर टाइम सेट कर सकते हैं। वीकली भेजना चाह रहे हैं तो वीकली भी आप टाइम सेट कर सकते हैं कि मंडे चला जाए, मंडे इस टाइम को चला जाएगा, तो मंडे भी इस टाइम पे चला जाएगा, वेडनेसडे भी इस टाइम पे चला जाएगा और सैटरडे भी चला जाएगा, तो हफ्ते में 3 दिन चला जाएगा। So you can make it weekly basis. If you go with the fortnight basis, then you can define fortnight means after 15 days. 15 days एक बार 15 days में चला गया, नेक्स्ट 30 तारीख को जाएगा, एक 15 तारीख को जाएगा, फिर 15 दिन बाद 30 तारीख को एक रिमाइंडर फिर से जाएगा। सो आप यहाँ पर जो है एज पर फोर्टनाइट बेसिस, जो कि 15 डेज बाद उसको रिमाइंडर जाएगा, तो फोर्टनाइट बेसिस पे भी आप रिमाइंडर सेंड कर सकते हैं। ठीक है, मंथली भी भेज सकते हैं, महीने में 1 बार जाएगा, महीने में 2 बार जाना है तो 2 बार जाएगा, 3 बार जाना है तो महीने में 3 बार जाएगा, कौन से टाइम पे जाएगा, इस टाइम पे जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से इफ यू से दैट इन एवरी मंथ आई वांट टू सेंड रिमाइंडर 3 times on a month, and the timing for sending the reminder will be the time that I'm mentioning right now over here, or whatever time I will be mentioning over here. So in that case आपका वो मंथली बेसिस पे भी रिमाइंडर चला जाएगा। ठीक है, so here you can get daily options, you can get daily, weekly, fortnight and monthly। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन ये भी आता है, that is पेमेंट रिमाइंडर टू बी सेंड विथ डिटेल्स। अगर बैलेंस ओनली, so you can select balance only, then only a message will get through that you are having a net balance outstanding amount of this, and you need to pay within this or whatever statement you are going to send। तो स्टेटमेंट भी जो है आप कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, जो डिफॉल्ट स्टेटमेंट है उसी स्टेटमेंट के हिसाब से जाएगा। वो स्टेटमेंट मैं दिखा देता हूँ। स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से जाएगा, अगर आप भेज रहे हैं तो इन दैट केस पेमेंट रिमाइंडर का जो स्टेटमेंट है उसका स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से जाएगा। हाई, एज ऑफ 26 द रिमेनिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज दिस, payable to us, kindly arrange for the settlement of this amount at your earliest convenience. Thank you for your prompt attention to this matter. Should you have any questions or required further clarification, please do not hesitate to contact us. Regards, your company name। So ये एक जो डिफॉल्ट स्टेटमेंट चला जाएगा उस आउटस्टैंडिंग कस्टमर्स को। अगर आप यहाँ पर सिर्फ बैलेंस ओनली को सिलेक्ट करते हैं, अगर हम यहाँ पर पेंडिंग बिल को सिलेक्ट करते हैं, तो अगर हमने बिजी में बिल बाय बिल फीचर को ऑन करके रखा है
कि कस्टमर का बिल बाय बिल मैनेज हो रही है, कौन से बिल के अगेंस्ट में पैसा दे रहा है। तो अगर हमने यहाँ पर अकाउंट्स पे बिल बाय बिल फीचर्स को एनेबल रखा है, and we need to send attachment also, the outstanding statement attachment also along with the mail statement. So in that case आप जो है पेंडिंग बिल सिलेक्ट कर सकते हैं या ड्यू बिल सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम ड्यू बिल करते हैं, so in case of due bill also what you will see, if I suppose I select this daily and I mention a specific time, right now it's 5:37, I mention suppose 5:38, okay, I save this. So I select the account group, groups of account, I select sundry daters. So whoever customer is under the group sundry daters, to every customers who are having outstanding amount at my company, they will get a reminder from my end. Okay. So मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो टाइमिंग है उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली पेमेंट रिमाइंडर का प्रोसेस स्टार्ट होना चालू हो जाएगा। Process is getting started, and you can work on busy, you can work on any other thing. You just have to minimize this. आप minimize करके रखें, आप बैक एंड पे अपना काम करते रहे, ठीक है। वो अपने एंड से ऑटोमेटिकली रिमाइंडर भेजता रहेगा, ठीक है। तो वो अपना प्रोसेस जैसे टाइम सेट होगा उस हिसाब से वो अपना रिमाइंडर भेजता रहेगा। देख सकते हैं यहाँ पर सेंडिंग पेमेंट रिमाइंडर का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। यहाँ पर बता रहा है किस किस को जा रहा है, उसका नाम भी दिखा रहा है। So that company names are also showing to whom you are sending the reminders or who are having outstanding amount at your company. So हमने ऑलरेडी एक सन्डी डेटा ग्रुप सिलेक्ट किया, तो डेटा ग्रुप के अंदर जितने भी कस्टमर्स रहेंगे सबको, और जिनके बेसिकली आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उनको ही रिमाइंडर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जिसका जीरो बैलेंस है उसको रिमाइंडर नहीं जाएगा, जिनके बैलेंस रहेंगे उनको ही रिमाइंडर जाएगा। और आप स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर कस्टमर को भेजना चाह रहे हैं तो आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जितना भी आपका रिमाइंडर्स वगैरह गया है, तो यहाँ पर दिखा रहा है 7 पेमेंट रिमाइंडर गया है 7 कस्टमर को, 7 कस्टमर्स को, ठीक है। तो एक बार मेल चेक करते हैं कैसे गया है। तो अगर आप देखेंगे तो ये इस तरीके से रिमाइंडर गया है कस्टमर्स को, कि कस्टमर्स को ये एक तो स्टेटमेंट गया है, दूसरा स्टेटमेंट के साथ उसको आउटस्टैंडिंग पेमेंट की जो आउटस्टैंडिंग स्टेटमेंट है वो भी गया है, कौन से बिल के अगेंस्ट में पैसा ड्यू है, तो ये भी आ रहा है यहाँ पर। तो पेमेंट रिमाइंडर के साथ जो स्टेटमेंट है उसके साथ आपका जो आउटस्टैंडिंग स्टेटमेंट है वो भी अटैच होके एज ए पीडीएफ अटैच होके जा रहा है। तो ईमेल स्टेटमेंट के साथ आपको अटैचमेंट भी जाएगा, ठीक है। पेमेंट रिमाइंडर का अटैचमेंट भी जाएगा अगर आप ड्यू बिल या पेंडिंग बिल सिलेक्ट करते हैं। अगर आप सिर्फ बैलेंस ओनली सिलेक्ट करेंगे, जो यहाँ पर ऑप्शन है ओनली बैलेंस ओनली, देन ओनली दी ईमेल स्टेटमेंट विल गो। तो आपको यहाँ पर फिर वो अटैचमेंट नहीं जाएगा, आउटस्टैंडिंग स्टेटमेंट का अटैचमेंट नहीं जाएगा, सिर्फ ये स्टेटमेंट जाएगा अगर आप बैलेंस ओनली सिलेक्ट करते हैं। तो that will just notify those customers that you are having an outstanding balance of this, you need to pay it soon. This is the kind of statement that will go to that particular customer. And if you want to send the attachment also, the outstanding report also, then you can select here the due bill or the pending bill. Okay, so this is the smart facilities that you can acquire through Busy Agent, or Busy Agent will smartly work in the backend to take care about your payment reminder process, take care about your data safety and security of your company. The data backup process will be taken care through Busy Agent in an automated way. Okay, so now let's come on the few FAQs that mostly appear in our mind. कुछ FAQs को go through कर लेते हैं कि क्या क्या questions Busy Agent के related हमारे mind पे आ सकते हैं। So basically first question is that is Busy Agent take backup on local drive and Google Drive both? तो क्या Busy Agent local drive और Google Drive दोनों पे backup ले सकते हैं? Yes, obviously. As I show you that you can take backup in local drive and Google Drive, or the automatic backup process will take place both in local as well as in Google Drive. Okay. How many times Busy Agent take backup in a day? As I saw, 3 times, maximum 3 times. एक दिन में आप 3 बार जो भी टाइम दे के रखेंगे, first you say that my backup should start in 12 p.m. Then my backup should start on 3 p.m. Then my backup should get start in 6 p.m. Okay, so maximum 3 times in a day you can take a backup. Busy Agent work automatic or manual? So Busy Agent basically work automatically.
Okay, in the back end, whatever time schedule you set, according to that, Busy Agent will work automatically to take care or to take the backup of your company data or to send reminders or to upload data in the mobile app or download data from the mobile app. How many days Busy Agent backups retain? So कितने दिन तक आपका बैकअप रिटेन होगा बिजी एजेंट के थ्रू आपके ड्राइव पे या गूगल ड्राइव पे? सो मैक्सिमम 99 days. Okay. Next question appears, which method can be used to send reminder through Busy Agent? So here currently we can send reminder through email, as we see that by email ही जा रहा है customer जिनके outstanding है. So those customer having outstanding or we need to send a reminder, payment reminder, we can send it through Busy Agent via email. Okay. So right now there is only option of sending reminder, that is through via email. Can we configure email body text and format for auto payment reminder? So right now, no. As I show that a default statement will be sent that hi, your payment is this and you need to pay this amount. So जो default statement है वो आपका उसी बेसिस पे जाएगा, उस पर आप कोई अभी टेक्स्ट चेंजेस नहीं कर पाएंगे. सो जो भी डिफॉल्ट टेक्स्ट है उसी की बेसिस पे आपका ऑटो रिमाइंडर आपके कस्टमर के मेल पे चला जाएगा. Can we set payment reminder for multiple companies in Busy Agent? Yes, as I show you that आप अगर payment reminders basically आप एक कंपनी के लिए आप 3-4 कंपनी के लिए सेट करना चाह रहे हैं तो सारे कंपनीज के लिए आप सेट कर सकते हैं. इसमें भी अगर आपको लगता है कि इस कंपनी के अंदर मेरे 5-6 कंपनीज है, आई हैव 3-4 कंपनीज, आई नीड टू कॉन्फ़िगर ऑटो पेमेंट रिमाइंडर फॉर बोथ फॉर ऑल दोस कंपनीज, then I can select the particular group or I can select the particular party to whom I want to send auto payment reminder. Okay, so हम बेसिकली यहाँ पर उस वही पार्टी या वही कस्टमर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, जिनको हम पेमेंट रिमाइंडर भेजना चाह रहे हैं या उस ग्रुप्स के डेटर्स ग्रुप्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिसके अंदर सारे कस्टमर्स रहेंगे जिनको हम ऑटो पेमेंट रिमाइंडर भेजना चाह रहे हैं. ठीक है, सो वी आर गेटिंग मल्टीपल कंपनी सिलेक्शंस ऑप्शन. Okay. Can we automatically synchronize data in mobile app through Busy Agent? So yes, आप जो है आप एक सर्टेन इंटरवल टाइम सेट कर सकते हैं जिससे कि आपका मोबाइल ऐप से डेटा ऑटोमेटिकली सर्वर पे चला जाएगा या सर्वर से डेटा मोबाइल ऐप पे ऑटोमेटिकली सिंक कर जाएगा. सो सिंक्रोनाइजेशन डेटा विल टेक्स प्लेस ऑटोमेटिकली थ्रू Busy Agent by the help of mobile app synchronization feature in Busy Agent. Here you can set your specific interval time. According to that, the data synchronization will takes place. जो भी आप टाइम सेट करेंगे 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट बाद मेरा डेटा जो है मोबाइल ऐप पे सिंक कर जाए सर्वर से, या मोबाइल ऐप में जो भी मैंने एंट्री करके रखा है वो डेटा मेरे सर्वर पे आ जाए. सो दैट्स ऑल कैन बी डन. ओके, सो ये आपको जो है बिजी एजेंट के थ्रू पॉसिबल है. आप मोबाइल ऐप सिंक भी ऑटोमेटिक मोड पे कर सकते हैं. Coming on the next question, can we automatically enable dongle server utility through Busy Agent? Yes, as I show that for license security purpose, you can enable dongle server from Busy Agent so that आपके client system जो भी access करके काम करेंगे उसको license access मिल जाए ताकि वो busy आप server पे busy नहीं भी open कर रहे हैं तो भी आप client से access करके काम कर सकते हैं. ठीक है, तो basically dongle server जो हम लोग client server mode पे जो है स्टैंडर्ड क्लाइंट एडिक्शन मोड या एंटरप्राइज क्लाइंट एडिक्शन मोड पे भी आप यूज कर सकते हैं. Which feature of Busy Agent are covered under BLS? तो कौन से वो फीचर्स है जो BLS के अंदर कवर्ड है Busy Agent के अंदर? एक तो गूगल ड्राइव. तो अगर आपका BLS रिन्यू है then you can use this feature called auto backuping data in Google Drive. मोबाइल ऐप ऑटो मोबाइल ऐप सिंक्रोनाइजेशन ऑटो पेमेंट रिमाइंडर अंडर BLS. मतलब ये 3 फीचर्स जो है बिजी एजेंट के अंडर आते हैं जो BLS के अंडर आते हैं. अगर आपको ये यूज करने तो आपके BLS एक्टिव होनी चाहिए, रिन्यू होनी चाहिए बिजी लाइसेंस की. इज दिस फीचर अवेलेबल इन ऑल बिजी मॉडल? तो यस, फॉर ऑल बिजी मॉडल. आप बेसिक यूज कर रहे हैं, आप स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं, आप एंटरप्राइज यूज कर रहे हैं, आप सैफरन यूज कर रहे हैं, एमरल्ड यूज कर रहे हैं, ब्लू वर्जन यूज कर रहे हैं, आप बिजी एजेंट को यूज कर सकते हैं. अगर आप ऑनलाइन भी यूज करें देन ऑल्सो बिजी एजेंट गेट स्टार्ट ऑटोमेटिकली. ओके, सो आप सारे मॉडल्स पे बिजी एजेंट को यूज कर सकते हैं. ठीक है, फ्रॉम वेयर टू डाउनलोड बिजी एजेंट सेटअप? तो आप इसको जो है www.busy.in में जा सकते हैं. एक बार मैं दिखा देता हूँ इसको. आप जो है busy.in पे जाएंगे
और आपको रिसोर्स पे डाउनलोड्स के अंदर आप जाएंगे तो डाउनलोड्स के अंदर आपको बेसिकली थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको बिजी एजेंट का सेटअप फाइल मिल जाएगा, डाउनलोड बिजी एजेंट। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, उसको रन कर सकते हो। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो जहाँ पर बिजी इंस्टॉल है, अगर आप सी ड्राइव पे इंस्टॉल है बिजी, तो ऑटोमेटिकली उसी ड्राइव पे बिजी एजेंट इंस्टॉल ले लेगा। ठीक है, so that's all from my side. Hope this session was knowledgeable for all of you. Further, if anybody having any questions, any doubt related to this busy agent, can ask me. किसी की कोई भी questions, doubt है तो पूछ सकते हैं. We will be happy to reply on that.